Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन से मेक्स इट ईजी, जहाँ पे मैं जर्नल का चैप्टर कुछ लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ और आने वाले काफ़ी लेक्चर्स तक सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर डिस्काउंट आने वाला है, इसके अंदर 1, 4, 3, 4, 30%, 40%, GST 18%, 28%, 12%, बहुत सारे कैलकुलेशंस आने वाले हैं। जैसे ही लेक्चर्स आगे जाते जाएंगे, डिफ़िकल्टी का लेवल ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता जाएगा। तब तक आपके ज्ञान का लेवल भी ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता जाएगा। चिंता ना करें, बिंदास अपने साथ में बने रहे। अभी के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं जी, ध्यान देना है कि ये पीछे जो है आपको मैंने अनगिनत बार बता दिया है। अगर आप ऐसा सोचते हो सर कब बताया, तो फिर मैं बोलूँगा आप जो पिछले लेक्चर्स हैं ना वो आपने देखा नहीं है, तो दोबारा 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 मतलब कितनी बार मैं रिपीट कर सकता हूँ। जर्नल है, पिछले 2-3 लेक्चर्स में तो आप जर्नल को ड्रॉ करना डेफिनेटली सीख गए हो। ये आज का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, नॉट जस्ट सोल्यूशन, ये इसीलिए क्यों होना चाहिए, ऐसा डेबिट क्यों वैसा क्रेडिट क्यों। सो एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे होता है ना, नॉवल हाथ में है, नॉवल, स्टोरी का नॉवल, सस्पेंस नॉवल, किसने मर्डर किया, लास्ट का पेज में देख लेता हूँ। सिमिलरली यू कैन फॉरवर्ड द एंटायर लेक्चर एंड गो टू द लास्ट 5 मिनट्स। सोल्यूशन आपके सामने, वेल मेरे पीछे रहेगा, बट देन आपने एक्सप्लेनेशन मिस आउट कर लिया। This channel and every lecture on this channel is not just to provide you the solution, सिर्फ आपको solution देने के लिए, वो तो आपको कोई गाइड से भी मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा ना। सॉल्व solution तो टेक्स्ट बुक में ही है। आप यहाँ पे आपका कीमती समय क्यों दे रहे हो, बिकॉज आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, और वो एज ए टीचर मेरा काम है कि भाई मेरे दिमाग में जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको नॉट जस्ट देना, आपको एक्सप्लेन करना, so that you also can in future use that same knowledge and teach it to someone else. Very important. You are connected to Steven Sir Makes It Easy because you get the required explanation. पीछे, journalize the following transactions in the books of Ashok General Stores. हाँ, तो ऊपर लिखा ना हमने अशोक जनरल स्टोर्स, का मतलब है अशोक मालिक होगा। 2 पेज, एक्चुअली मैंने 2 नहीं, इसके बाद भी एक और बनाया है। सो मुझे ज़रूरत पड़ी उसकी, अभी आपके नोटबुक पे डिपेंड करता है। कभी 2 पेज में हो जाएगा आपका, कभी मे बी 2 से ज़्यादा चला जाएगा तो ड्रॉ कर लेना उसके बाद में। तो वेरी सिंपल है, आप अभी से ड्रॉ मत करो, आप बाद में कर लेना, 2 पेज तो मिनिमम जाएंगे। अच्छा, पहला वाला पॉइंट,
देख लेते हैं 2019 में, तो हम वैसा ही लिखेंगे 1 तारीख। रिसीव्ड 5000 फ्रॉम राम। रिसीव्ड क्या? प्यार मिला, गले लगा? नहीं, ऐसा नहीं होता यार बिजनेस में। रिसीव्ड का मतलब पैसे मिले, वरना वो बोलते थे रिसीव्ड दिस, रिसीव्ड दैट, कुछ नहीं बोला तो पैसे मिले, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स फ्रॉम राम, तो अच्छी बात है यार, राम थैंक यू। ऑन बिहाफ ऑफ भरत, ये चेंज कर देता है कहानी को। मतलब ऑन बिहाफ ऑफ, ये बिहाफ का मतलब क्या होता है? तेरे लिए, तेरी वजह से, तेरे लिए। हाँ, तो मतलब सिचुएशन क्या थी? देखो भाई, ऐसा था कि ये मेरी दुकान है, बगल वाली भरत की दुकान है, अपनी दुकान भरत की दुकान। भरत दोपहर को 2 घंटे के लिए घर जाता है। क्यों? खाना खाने, थोड़ा आराम करने, फिर आ जाता है। अपन भी जाते हैं, बट अपन आज बैठे थे, हमको कुछ एक्स्ट्रा काम था, तो ये सामने से राम आता है और वो जाके बगल वाले दुकान में झांक रहा है, भरत भरत। तो मैंने बोला अरे साहब यहाँ पे आओ। वो भरत ना क्या ना, वो घर गया है खाना खाने, लंच करने। क्या बात है? तो राम बोलता है अरे मेरे को पैसे देने थे उसको। तो बड़ा सिंपल है, मैं बोलूँगा सर आपका 2 घंटे रुकोगे, आप अगर अब आप माइंड ना करो तो आप एक काम करो, पैसे मेरे को दे दो। ओके, लाइक कोई टेंशन रहेगा ना आपको कि भाई ये शक्ल पे भरोसा करना है कि नहीं करना है, आप भरत को कॉल कर लो, भरत भाई है हमारे, उसको पूछ लो कि बगल वाले को मैं पैसे दे सकता हूँ। तो राम बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप शरीफ दिखते हो। बोला बराबर है, ये शरीफ चेहरा है। तो मैंने पैसे ले लिए, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट प्लीज नोट, अपनी राम के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, ये पैसे हम भरत के लिए ले रहे हैं। तो जैसे भरत आए 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 हफ्ते के बाद हमको ये पैसे भरत को देने पड़ेगी। भरत हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक ऐसा इंसान होता है जिसको आपको पैसे देने हैं। राम का नाम मत लिखना, बिहाफ का चक्कर तेरे लिए बहुत खतरनाक होता है। स्लोली पढ़ना और स्लोली समझना और स्लोली लिखना। पैसे आए रखो, राम का नाम मत लिखना। क्यों राम का नाम मत लिखो? अरे राम के साथ में अपना कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस भरत की दुकान, भरत बंद नहीं थी, था नहीं भरत, तो उसके पैसे उसने मेरे को दे दिए। हमको ये पैसा भरत को देना है। भरत हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर एक ऐसा इंसान जिसको हम पैसे देने वाले हैं, और भरत एक ऐसा इंसान है जिसको हम पैसे देने वाले हैं। तो हमारी पहली एंट्री जो 1 तारीख को होती है, कैश आया, कबूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट मैं राम का नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि राम हमको थोड़ी देने वाला था, वो तो भरत मिल जाता, उसको दे के चला जाता वो, बराबर। भरत के लिए, ओके, तेरे लिए हमने ये पैसे एक्सेप्ट किए हैं, तो हमने भरत का नाम लिखा। क्यों? क्योंकि हमको याद रखना है, अरे ये पैसा हमारा नहीं है, भरत का है। वो नोट लिए, उसके ऊपर हमने एक लेबल लगाया भरत। भरत आएगा उसको हम दे देंगे। तो बिहाफ जब आता है ना, बिहाफ, बी अ लिटिल केयरफुल। 4th, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। सिंपल है, परचेज किया तो वो डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अब बदली में कैश दिया। बदली में, क्योंकि हमारा थोड़ी कोई ससुर है, फादर इन लॉ फ्री का देगा, नहीं भैया फ्री का नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं। तो 4 तारीख को परचेज इज डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड आपने पैसे दिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। नेक्स्ट 8, पेड फॉर सैलरी, तो किसी का पगार दिया, सैलरी खर्चा होता है। डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अब पैसा गया ना, पेड का मतलब पैसा गया। आजकल कंपनीज जो सैलरी देती है ना, सीधे अकाउंट में देती है, अकाउंट में। बट मे बी कोई ऐसे लेवल पे काम करता है, वर्कर, ओके, एकदम नीचे लेवल पे, जिसके पास खाता ही नहीं है, तो फिर हमको तो पैसे ही देने पड़ेंगे ना उसका। बीइंग सैलरी पेड, सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। अगला 12, परचेस्ड गुड्स, फिर से गुड्स खरीदे, परचेज डेबिट, फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट।
मतलब पैसे नहीं दिए, गणेश का नाम लिखो, क्यों पैसे दिए नहीं ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो आपका क्रेडिटर है, वो आपका क्रेडिटर है, आपको उसका नाम याद रखना है, आपको उसका नाम लिखना है। अच्छा तो लिख दिया, देखो गणेश, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। तो एवरी टाइम एक एंट्री नरेशन, एक एंट्री एक नरेशन। कभी कभी बहुत सिंपल होता है, कभी थोड़ी परेशानी होती है। 17 सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट। तो नेहा, नेहा यहाँ पे है, हमने गुड्स दिए, रखो, ओके। तो नेहा इज रिसीवर, सेल्स इनकम होता है, सेल्स इनकम होता है। तो मेरे ऊपर अगर आप नज़र मारो, मिसेस नेहा, आप में से कोई पूछेगा, कोई सर वो मिसेस नहीं लिखे तो चलेगा? चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा खुश हो जाएगी, बोलेगी अरे मुझे जवान लग रहा है, ओके, मुझे मिसेस नहीं कहा गया, बट दैट्स ओके, नेहा लिखना ज़रूरी है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट। 17 तारीख का तो वो भी हो गया। 20 परचेस्ड मशीनरी, मशीन, बड़ी मशीन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन डेबिट व्हाट कम्स इन ऑफ 80,000 एट 12% GST। रुक, GST मतलब GST लिखना पड़ेगा, 12% नहीं, 6 and 6, क्योंकि आधा GST जाता है सेंटर को, आधा GST जाता है स्टेट को। ये इनपुट है, कैसे मशीन खरीदा ना, तो वो इनपुट है बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, वो एक इनपुट है, बराबर, हाँ। एंड पेड बाय चेक, तो पैसा जो है वो बैंक से गया, चेक मतलब बैंक से गया। पहली बात, आपको डेबिट में क्या लिखना है, देख मशीनरी खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन 80,000, बट उसके ऊपर क्योंकि हम भारत में हैं और भारत में GST का कानून लागू करता है सारे बिजनेसेस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये चोरी छुपे नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर लो ये चोरी छुपे होता नहीं है, सरकार को पता ही चल जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे सर बोलने का ही नहीं किसी को, ऐसा नहीं, ओके। द सिस्टम इस तरह बनाया गया है दैट सरकार को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी कभी क्या होता है ना, कोई आपके सफलता से जलते हैं, होता है ना, होता है, तो वो कंप्लेन करेंगे आपका, भाई इसने ना खरीदा, इसने GST नहीं दिया, तो चला जाएगा ना उनके पास में न्यूज़। तो बहुत मुश्किल है, चोरी करते हैं लोग, फ्रॉड करते हैं, बट आसानी से नहीं होता। और मैं तो बताऊंगा कि भैया जो सही है वही करो, ताकि भविष्य में कोई चीज़ आके आपको पिछाड़ी में काटे ना। अच्छा, ऐसा ये इनपुट है। तो पहले आपको 6% का CGST विच कम्स टू 4,800 ऑफ 80,000 एंड 6% का SGST विच कम्स टू 4,800 कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये है नॉमिनल डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैंक कितना पैसा देगा भैया, बैंक तो टोटल देगा, मशीन का भी पैसा देगा, CGST का भी देगा, SGST, क्योंकि हमको तो टोटल पे करना है। तो बैंक में टोटल लिखा 89,600। तो जब भी इनपुट आएगा डेबिट में GST आएगा, जब आउटपुट आएगा तो क्रेडिट में GST आएगा। वो आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा थोड़ा करके कवर अप कर देंगे, ओके। तो बीइंग मशीनरी परचेस्ड एट 12% GST and amount paid by check, that is the narration। आगे जाते हैं जी, ऑलमोस्ट हम बीच में आ चुके हैं। 25 पेड टू SG and Sons, कोई कंपनी है, कोई दुकान है, उनका नाम है SG and Sons बाय चेक, तो वो रिसीवर है SG and Sons, बराबर। और आपने चेक से दिया तो अपनी जेब से थोड़ी पैसे गए, बैंक से जाएंगे, चेक मतलब बैंक से जाएंगे, तो बैंक गिवर है। सो जस्ट बिहाइंड मी 25 मई को ये घटना घटी, ओके। बीइंग SG and Sons पेड बाय चेक, ओके। 25 को ये भी हो गया जी। जब आप को चेक मिलता है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, कौन सा चेक, बेरर, बैंक में डाला नहीं डाला, बट व्हेन यू गिव अ चेक सोचो मत, सीधा बैंक लिखो, सीधा बैंक लिखो। 28 रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम गणेश, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों है, बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट। रिसीव्ड मतलब क्या मिला, फूल मिला, गोभी मिला, ओके, पेड़ पौधे मिले, मतलब पैसा मिला।
कमीशन, हमने कुछ काम किया होगा गणेश के लिए तो उसने हमको कमीशन दिया। कमीशन कमाई होती है, नॉमिनल, कमाई नॉमिनल। तो गणेश को क्या करूँ, कुछ मत करो, गणेश का नाम अपने दिमाग में मत रखो। क्यों रे, ऐसा क्यों? क्योंकि गणेश ने हमको पैसे दे दिए, हमारा स्टोरी खत्म। इफ इट वुड हैव बीन गणेश प्रोमिसेस टू पे, गणेश वादा करता है पैसे देने का, कमीशन देने का, तो बोलता है गणेश तेरा नाम लिख रहा हूँ, हाँ देख देख लिखा मैंने, गणेश तू मेरे को पैसे दे। पर जब गणेश ने पैसे दे दिए तो उसका नाम कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम जब अपनी कहानी खत्म। कहानी ये नहीं है हमारी अधूरी कहानी, अधूरी कहानी रहेगी ना तो भैया बाइबल क्या बोलते हैं उसको, बुक बनाओ, बुक में लिखो, ओके, जो अधूरी कहानी है, ताकि कहानी पूरी आगे जाके हो सके। यहाँ पे कहानी पूरी हो चुकी है। सो 28 को आपको पैसे मिले, तो मेरे पीछे नहीं, मेरे बगल में, मैं हट जाता हूँ। कैश आया, डेबिट वर्ड कम्स इन। क्यों आया, नॉट कहाँ से, क्यों आया, कमीशन। नॉमिनल अकाउंट कभी मत भूलना, नॉमिनल अकाउंट कभी मत भूलना। आप बोलोगे सर गणेश का नाम तो आपने लिखा, हाँ जी मैंने नरेशन में लिखा, मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं किया। नरेशन में चलता है, एंट्री में नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नरेशन में चलता है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। इसके बाद मेरे ऊपर पेड रेंट, अरे सिंपल है, रेंट खर्चा, पैसे गए। अगर वो बोलेगे बाय डेबिट कार्ड, मैं बैंक डाल दूंगा, बाय यूपीआई मैं बैंक डाल दूंगा, बाय क्रेडिट कार्ड मैं बैंक डाल दूंगा, आरटीजीएस एनईएफटी मैं बैंक डाल दूंगा, बैंक डाल दूंगा, बैंक डाल दूंगा। तो आज डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर है, तो मेरे लिए नेक्स्ट पेज है, मेरे लिए ये तीसरा पेज है। टू कैश बीइंग रेंट पेड, 30 तारीख हो गया, बड़ा सिंपल था जी। लास्ट 31 परचेस्ड शेयर्स, बड़ा स्टॉक मार्केट होता है ना, आपने न्यूज़ तो काफ़ी बार सुना रहेगा, स्टॉक मार्केट ऊपर गया, स्टॉक मार्केट नीचे गया, भाव ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, ये चलता ही रहता है। आपने शेयर्स खरीदे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सब परचेस लिखो, नहीं 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 नहीं, आपने गुड्स नहीं खरीदे, शेयर्स खरीदे। शेयर्स रियल अकाउंट है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन फ्रॉम ऑफ अतुल कंपनी। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब भी आप शेयर्स खरीदो ना, शेयर मार्केट में उधारी नहीं चलती, वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर मार्केट में उधारी नहीं चलती। मैं शेयर्स लेता हूँ ना, कल पैसे दूंगा, कंपनी बोलेगी ए क्या है, शेयर मार्केट में सब चीज़ कैश पे, चल पैसे दे, अब भी दे। क्योंकि शेयर मार्केट एक बाजार है जहाँ पे कंपनीज आते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, और अगर आप बोलोगे एक हफ्ते के बाद देता हूँ, वो बोलेगे जाओ 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 पीछे खड़े रहो। सो शेयर मार्केट में सारी चीज़ें अब भी पे चलती है, पैसे अब भी। हाँ, तो आगे बोलो, देखो थ्रू डीमैट अकाउंट, सब कुछ बच्चे पूछेंगे क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। सर ये डीमैट क्या होता है? देखो जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है ना, आपके मम्मी पापा का होगा, करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट का पूरा नाम है डी मटीरियलाइजेशन। एक 10 रुपये का अगर आपने नोट देखा है तो वो मटीरियल है, उसको आप छू सकते हो। डी मटीरियल मतलब उसको डिजिटल कर देना, डिजिटल, तो आप उसको छू नहीं सकते, बराबर। हाँ, तो डी मटीरियलाइज का मतलब है शेयर्स को डिजिटल करना, उसके लिए डीमैट खाते की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल है, बैंक में है, मतलब आपने पैसा दिया बैंक से। डीमैट अकाउंट का मतलब है आपने पैसा दिया बैंक से, शेयर्स खरीदे, डेबिट व्हाट कम्स इन। आप में से कुछ टीचर्स, आपके कुछ टीचर्स कहेंगे नहीं आप इन्वेस्टमेंट लिखो। हाँ तो लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शेयर्स एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जो सही है। ओके, इन्वेस्टमेंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टू बैंक अकाउंट, क्यों? वो आपने डीमैट से भरा ना, डीमैट मतलब बैंक में पैसा है भैया, वही से भरा है। बीइंग शेयर्स ऑफ अतुल लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है, एक कंपनी का नाम है, और पैसे दिए डीमैट अकाउंट से। फिर जी ग्रैंड टोटल आता है, आप शुरुआत से एंड तक ऐड कर लीजिए। ये वाले प्रॉब्लम में 3,02,600। अब दैट इज़ इट। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, और अगर कोई डाउट था वो डाउट क्लियर
हो चुका है। ओके, अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, ताकि उनका भी सपोर्ट, उनको भी लेक्चर से, चैनल से फ़ायदा हो सके, प्लीज़ टेल देम अबाउट आवर चैनल, प्लीज़ शेयर द लिंक विद देम। इफ़ यू आर न्यू, प्रेस द बेल आइकन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ओके, इट हेल्प्स द चैनल एंड द ग्रोथ ऑफ द चैनल। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इंडिविजुअली ये मुझे और जो मेरे कलीग हैं जो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें संभालते हैं, डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट जब ये चैनल ग्रो करता है तो ये चैनल और बच्चों तक यूट्यूब पहुँचाएगा। यूट्यूब बच्चों को बोलेगा कि देखो भाई, एक चैनल है स्टीवन मेक्स इट इजी, वहाँ पे टीचिंग अच्छी होती है, मैं थोड़ा अपना लाल कर रहा हूँ। ओके, आप प्लीज़ इस चैनल पे अपने अकाउंट्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने SP, OC, इको के रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूर जाए। दैट इज़ व्हाट द ग्रोथ ऑफ द चैनल। ओके, इट हेल्प्स प्रोवाइड द नॉलेज टू मैनी मोर स्टूडेंट्स जो जानते ही नहीं हैं कि ये वाला चैनल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अगले एक सवाल जवाब के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।